Hello and welcome. You are watching Explosive Exclusive. I am Padmaja Joshi, and the most explosive story of the last 24 hours, Mukhtar Ansari's death in custody. It's different things to different people. For political parties, it's become an opportunity to milk the death for upcoming elections. The reasons are quite obvious to guess. For his family, it's a case of custodial murder. They are asking for an investigation which is impartial and also another post-mortem. But there is a third group of people for whom Mukhtar Ansari's death is a symbol of justice, which was delayed but not denied. And it's important to listen to these people, because while some will make you think that Mukhtar Ansari's passing is that only of a political leader, an opponent of the BJP, etc., remember the man who died yesterday in Banda was no saint. He was a convicted criminal. And among the crimes he is accused of is the daylight and brutal murder of BJP MLA Krishnanand Rai. Today, Rai's family went to the temple to offer their thanks for karma finally catching up. But before we talk about Rai in particular, let's tell you about Mukhtar Ansari's criminal history. In prison since 2005, he faces 65 criminal cases and has been convicted in 8 so far. Among his illustrious record are cases of murder, extortion, kidnapping, forgery, among others. The cases against Ansari dragged on for years and years. In several instances, the government in power was accused of according him protection, because of which witnesses turned hostile and allegations fell by the wayside. Such was the situation. Imagine that he has 65 cases, but the first conviction happened in September 2022. The cases against him are 20 years old, but the first conviction happened 2 years ago, less than 2 years ago. In fact, in 22, the Allahabad High Court overturned a trial court's order that acquitted Mukhtar Ansari and then sentenced him to 7 years imprisonment in a 19-year-old case where he was found guilty of threatening and pointing a revolver at the Lucknow district jailer. He was also fined 37,000 rupees. But perhaps the most striking case against him is the murder of Krishnanand Rai. Rai's family has had a huge, long, arduous battle. The BJP MLA and 6 others were killed in Ghazipur in November 2005. The accused in the case of Krishnanand Rai were Mukhtar Ansari, his brother Afzal Ansari, and 5 more. On the direction of the High Court, the case was investigated by the CBI, but in 2019, a special CBI court acquitted Afzal, Mukhtar, and 5 others. Now Rai's son has filed an appeal against this acquittal, and it is still pending in the Delhi High Court. And that is why today, Piyush Rai, Krishnanand Rai's son, and his mother called Mukhtar Ansari's death a case of divine justice. And Piyush Rai, in fact, is live with us now. Piyush, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आज आप मंदिर क्यों गए, क्योंकि एक आदमी की मौत हुई थी, पर आप मंदिर में जाकर के किस चीज का धन्यवाद कर रहे थे? जब रात को ये खबर आई थी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो हमारी माता जी ने मैं उस समय मोहम्मदाबाद में था, लोगों के बीच में बहुत हर्षोल्लास हुआ, लोगों दीपावली जैसा पर्व मनाने लगे, लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित किया. मेरी माता जी का फोन आया कि हम लोग एक भगवान के दरबार चलना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार से न्याय हुआ है, तो उनको धन्यवाद करना हम लोगों का सर्वप्रथम धर्म बनता है. तो मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे बनारस आया और माता जी के साथ फिर मैं 10 बजे करीब काशी विश्वनाथ धाम जाके बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेक बाबा का आशीर्वाद लेके उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि हमारे संघर्षों का और हमारे बलिदान का बाबा ने उचित मूल्य दिया है. Piyush, हमें 2 मिनट का वक्त दीजिए, because it's important for our viewers to understand what is this man that we are talking about. Mukhtar Ansari is not the only one. He, of course, was in jail for almost 2 decades now, but his entire family was in the crime world, including his sons, his daughters-in-law, his wife. All of them faced cases. Afzal Ansari, his brother, is out on bail and incidentally is fighting the Lok Sabha elections on a Samajwadi Party ticket from Ghazipur. Then let's talk about his son. His son also is in jail. Afsa Ansari, his wife, has a 75,000 rupees bounty on her. He's got sons who are also in the world of crime. Abbas Ansari
is currently in jail. He is in fact trying to get out on parole to attend to the burial of his father. Then let's talk about the next relative, which is Mukhtar Ansari, the daughter-in-law. She also was accused in a case where she had gone to jail to meet her husband. She is currently out on bail. So you have got Mukhtar Ansari, the crimes against him, and now you've got all of his other family members also facing multiple charges. A lot of people, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीयूष कि मुख्तार अंसारी का इस वक्त जो डेथ हुई है ये डेथ नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि लोगों को बांट करके चुनाव जीतने के लिए ये किया गया है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं तो इन लोगों को ये कहूंगा कि अपराधियों को ये जात और धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। वोट बैंक की राजनीति में इस देश को न नुकसान पहुंचा और तुष्टीकरण की राजनीति से कोई किसी को लाभ नहीं होने वाला है। और जैसा मैं मानता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों को संतुष्टिकरण की राजनीति करनी चाहिए, मेरा मानना है कि हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि आज चुनाव में बोले गए वक्तव्य कल क्या उसके परिणाम होंगे, इतनी जिम्मेवारी के साथ हम सब लोगों को बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अपराधियों को इन्हीं लोगों ने परिचय देके इतना बड़ा माफिया बनाया है, और आज इसके कर्मों की सजा अगर भगवान दे रहा है तो इसमें इनको इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? पीयूष, हम अभी दिखा रहे थे कि कैसे उनकी पूरी फैमिली जो है अलग अलग क्राइम्स में संलिप्त है, पर अभी भी अफजाल अंसारी को लड़ाया जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है गाजीपुर से। फिर हम ये क्या सच में कह सकते हैं कि उनका जो पूरा एक आतंक का साम्राज्य है या उनकी जो पॉलिटिकल पैठ है, उनकी जो पावर है पॉलिटिकल, वो खत्म हो गई है? मुख्तार अंसारी तो चले गए, पर अफजाल अंसारी तो अभी भी लड़ रहे हैं और टिकट पे लड़ रहे हैं। देखिए, यही बातें हैं, यही बातें समझने की भी होती हैं, और यही चीजें किसी भी राजनीतिक दल के इरादों को साफ जाहिर भी करती हैं। आप ठीक है, उनके भाई अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वही दल कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, वही आज ये सरकार है जिसमें ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यायिक जांच की उन लोगों ने मांग की, न्यायिक जांच का भी आदेश हो गया। आखिर कहीं ना कहीं हमें तो ये स्वीकार करना होगा ना कि इस प्रजातंत्र में जो भी न्यायिक प्रणाली के तहत जो भी कार्रवाई है वो तो सब लोग करेंगे, वो सब स्वतंत्र है करने को। वो लोग अपनी न्याय प्रणाली पे विश्वास करते हुए अपना काम करें, और वही जो दल इनको परिसर दिए आज उनके भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये इनकी जो दोहरी मानसिकता इसमें दिखती है वो जनता को साफ दिख भी रही है, और जनता ये देख पा रही है कि कैसे इन लोगों का जो जनता के बीच में विकास और अन्य मुद्दे केवल एक निमित्त मात्र है। एक अपराधी और उसके परिवार के इर्द गिर्द कैसे उनकी अपनी राजनीति घूमती है, ये साफ इससे दिख रहा है। Now you can imagine the kind of terror this family wielded, not just in Ghazipur or in Mau, but in the entire region of eastern Uttar Pradesh. Even now, Afsa Ansari has been on the run over the last 1 year. She has a bounty of 75,000 over her head. Now the police is keeping a lookout on whether she is going to attend the last rites, the burial of her husband tomorrow, which is where it's going to take place. पर अगर हम कृष्णानंद राय जी की बात करें पीयूष, जब आपके पिताजी की हत्या हुई थी उस वक्त आप कितने बड़े थे? आपके लिए जो वो अगले कुछ महीने और साल थे वो आप पे और आपके फैमिली पे कैसे गुजरे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से पूरे घर भर में एक जॉइंट फैमिली है हमारी, तो पूरे घर भर में मैं अपने पिताजी से काफी अटैच था, और व्यक्तिगत रूप से हम दोनों का अटैचमेंट एक बाप बेटे से ज्यादा गुरु शिष्य का था। जीवन के सारे शिक्षाएं मैंने उन्हीं से ली हैं। संस्कार हो, परवरिश हो, अपने जीवन के हर छोटे बड़े जो निर्णय मैंने लिए उनके सिखाए हुए संस्कार, उनके सिखाए हुए जो भी हमारे धर्म में नियम कानून है उसके तहत। तो एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि एक अंदर से आत्मा खाली हो गया था उनके जाने के बाद। लेकिन समय एक का पहिया एक ऐसा होता है जो आपको बहुत शिक्षा देती है, आपको सिखाती है इन परिस्थितियों से लड़ना। आपको उसी घाव को समय ही भरता है। और आज जब मेरे पिताजी की हत्या हुई उस समय मेरी उम्र महज 17 साल थी, और वो 17 साल की उम्र से आज मैं 35-36 साल का हो गया। देखते देखते आज 18-19 साल बीत गए। तो कभी ये लगता है कि कल की बात थी, और कभी कभी जो दिन गिनते हैं तो लगता है कि ये काफी दिन बीत गए। और ये लड़ाई और ये जद्दोजहद इन अपराधियों के खिलाफ, ये संघर्ष इन अपराधियों के खिलाफ इतना लंबा चला कि अपनी उम्र तक का ख्याल नहीं रहा कि हम कब बच्चे से बड़े हो गए।
वो एक दशक था जहां पे मुख्तार अंसारी का खौफ था। अगर आप लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक, प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक बात करते थे मुख्तार अंसारी की, तो लोग ऐसे किस्से सुनाते थे। जब आपके पिताजी की हत्या की भी बात होती थी तो वो एक वो फोन कॉल था जो बहुत वायरल हो गया था, जिसमें ऐसा बताया जाता था कि खुद मुख्तार अंसारी सुन रहा था फोन पर कि कैसे हत्या की जा रही है। बाद में एक उनकी बातचीत का ऑडियो भी बहुत वायरल हुआ था। अगर जिन लोगों को उस वक्त से हु आर नॉट फेमिलियर विद व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, पीयूष, आई जस्ट वांट टू प्ले आउट कि वो जो एक फोन कॉल था जिसमें कहा गया था कि कृष्णानंद राय की मैंने चोटी काट ली, एक बार आई वांट व्यूअर्स टू लिसन टू दैट। बोला ठाकुर, वो भैया एक को जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णनंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ, काट नहीं, ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, बात होगी। पीयूष, ये फोन कॉल सबने सुना, उसके बावजूद उसका जो क्लीन चिट है केस में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को दी गई। देखिए, वो फोन कॉल हत्या के करीब 8 या 9 महीने बाद ही हम लोगों ने सुनी थी, और वो समय सीबीआई के कब्जे में वो फोन कॉल आई थी। अब यहीं पे थोड़ी चीजें स्टेट पुलिस के कब्जे में वो चीज आई, क्योंकि उस समय सीबीआई जांच के आदेश नहीं हुए थे। सीबीआई का आदेश हम लोगों को हाई कोर्ट द्वारा मिला था। उस समय 8-9 महीने बाद जब स्टेट पुलिस को ये फोन कॉल मिला था, तो आप सोचिए उसके साथ इतनी टेम्परिंग की गई, इतनी चीजें उसमें बदली गई कि मतलब इसी से मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि स्टेट पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट पूरे तरीके से सहयोग नहीं कर रही है, और इन अपराधियों के साथ मिलके और मुकदमे को बिगाड़ने का काम करा जा रहा है। लगता है कि इतना पूरा जो वक्त था उसमें मुख्तार अंसारी को और उसके परिवार को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। जी बिल्कुल, ऐसे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी बार की कार्यकाल की सरकार है। इससे पूर्व हमेशा बसपा में, सपा में कभी इन्होंने अपना दल बनाया, तो हमेशा इनका यही रहा है, कभी इस दल में कभी उस दल में। भारतीय जनता पार्टी इनके विचारधाराओं के विपरीत दल है, तो कभी इनमें इनका आना नहीं हुआ, ना कभी पार्टी ने इनके बारे में ऐसा सोचा। तो हमेशा इनको संरक्षण ऐसे दलों का मिलता रहा जो इनको परिचय दे सके, इनके अपने जो काले साम्राज्य को बढ़ाने में मदद करे, वैसे दलों में हमेशा जाते रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको हमेशा संरक्षण प्राप्त रहा। पर पीयूष, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पॉइजनिंग की गई है, जहर दिया गया है। इनफैक्ट एक आखिरी जो फोन कॉल था 24 घंटे पहले, जो उनका अपने बेटे और बहू के साथ था, उसके बूते पे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जहर दिया गया। आई जस्ट वांट यू टू लिसन टू दिस फोन कॉल फर्स्ट। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग।
हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ नहीं हो तो हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पा रहे। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा पापा। तो पीयूष, जब ये फोन कॉल सुनते हैं आप, तो ऐसा नहीं लगता कि क्या ये न्याय है? अगर आदमी कह रहा है कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मैं व्हीलचेयर से उठ नहीं पा रहा हूं, अगर उनको जहर दिया गया है, ये उनकी परिवार वाले कह रहे हैं, क्या ये न्याय है या हत्या? देखिए, न्याय की परिभाषा हर किसी की नजर में अलग अलग है। जैसी जिसकी नजर वैसे उसकी नजरिए। मेरा मानना है कि न्याय का सबसे अच्छा मापदंड समय होता है, और समय से बड़ा ना न्याय मूर्ति होता है और ना न्याय का गवाह होता है। तो आज समय ने अपना न्याय किया है, अब न्याय मूर्ति भी समय है और उसका न्याय का गवाह भी समय ही है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे समाज में पड़ने जा रहा है। और रही बात जहां तक कि जहर देके मारने की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, न्यायिक जांच हो ही रही है। अब इसके अलावा क्या चीजें बची हैं कि जो साबित करे कि न्याय है कि नहीं है। But will the people actually accept that post-mortem report if it is not convenient for the kind of politics and the political narrative that they want to project? In the meantime, for one family at least, it seems like this is justice which is finally delivered, even if it was delayed. Thank you very much. आपको बहुत धन्यवाद पीयूष, हमसे बात करने के लिए।